خوشی کا موقع ہو۔ ایمان والوں کو یہی زیب دیتا ہے کہ ان کے گھر میں غم آئے تب بھی نبی نبی کرتے ہیں، خوشی آئے تب بھی نبی نبی کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے، مرحوم کے لیے اصال ثواب غرض ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کی اصلاح، اپنے نظریات کی اصلاح بھی مقصود ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری قوم کی حالت یہ ہے، سچویشن یہ ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں۔ ہم آپس میں ہی لڑنے مرنے کو تیار رہتے ہیں۔ ہمیں کن چیلنجز کا سامنا ہے، کن چنوتیوں کا ہمیں سامنا ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دشمنان اسلام ہمارے لیے کیا کیا پروپیگنڈا کرتے ہیں، کیا کیا پلاننگ کی جا رہی ہے، ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ ہم تو آپس میں لڑیں گے، اور یہ حقیقت ہے کہ آج مسلمان سے ہی مسلمان پریشان ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور تیسرے آدمی کو آپ اٹھا کر دیکھیے، دوسرے سے نہیں، مسلمان سے پریشان ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، یہ علماء کرام تشریف لاتے ہیں، بولتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا تو کام ہے۔ مولویوں کو ڈائریا نہیں ہو گیا بھائی، ہمیں بھی کڈنیز پیاری ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری لائف اچھی گزرے اور لمبی لائف ہو۔ یہ جو مولوی علماء اکرام چیختے چلاتے آپ کو بتاتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں بولتے ہیں، انہیں کوئی ڈائریا نہیں ہو گیا، ان کا دماغ خراب نہیں ہے۔ یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں پیارے کہ جس 4 دن کی زندگی کے لیے تو آخرت کو بھول بیٹھا ہے، در حقیقت آخرت کی زندگی ہی زندگی۔ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ تو وہ مشروب ہے جو اس کا شارب ہوتا ہے، جو اس مشروب کو پیتا ہے، یہ اس کے ساتھ کبھی وفا نہیں کرتا، یہ اپنے پینے والے کو کبھی نفع نہیں دیتی۔ یہ علماء اکرام اگر آپ سے بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ صاحب ان کی عادت ہے، نہیں، یہ وہ جانتے ہیں جو آپ نہیں جانتے۔ یہ قبر و آخرت کی طرف آپ کو توجہ دلاتے ہیں جو آج ہم بھول چکے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، مجھے بتائیے، پہلے زمانے میں مہینے میں 1 جلسہ ہوتا تھا، اور اس ایک جلسے کا اثر کئی سال تک رہتا تھا۔ آج ہر علاقے میں جلسہ ہے، ہر محلے میں جلسہ ہے، لیکن اس کے باوجود بدلاؤ کچھ نہیں، چینجز کچھ نہیں۔ اگر جلسے سے پہلے مسجد میں 10 نمازی تھے تو جلسے کے بعد میں 8 ہو جاتے، 11 نہیں ہوتے۔ جلسے سے پہلے اگر کوئی شراب پیتا تھا تو جلسے کے بعد بھی وہ شرابی بنا رہتا ہے، اس پہ فرق نہیں پڑتا۔ اگر جلسے سے پہلے کوئی ماں باپ سے بدتمیزی کرتا تھا تو جلسے کے بعد بھی نافرمان رہتا ہے۔ مجھے بتائیے پھر حاصل کیا ہوا، مطلب کیا نکلا؟ جلسوں میں صرف رسمن نہ آیا کرو، اس لیے نہ آیا کرو کہ فلاں کے یہاں فاتحہ کا موقع ہے تو چلو ہم بھی جا کے چہرہ دکھائیں گے، ہم بھی جا کے پارٹیسپیٹ کر لیں، ہم بھی اپنی جو ہے حاضری لگا دیں۔ نہیں، اس لیے آیا کرو کہ ہمیں یہاں پر سیکھنا ہے، ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے، اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے، اپنے نظریات کو درست کرنا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، آپ مجھے بتائیے، رات دن جلسے ہو رہے ہیں، رات دن تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود آج تباہ کاری بہت زیادہ ہے۔ آج مسلم بیٹیاں ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلموں کے ساتھ جاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کہ کبھی آپ نے پہلے سنا تھا، کبھی آپ سنتے تھے کہ کسی مسلم لڑکی نے کسی غیر کے ساتھ کورٹ میرج کیا ہو؟ 10-20 سال میں کوئی ایک کیس سن لیا ہو تو سن لیا ہو، آج لاکھوں کی تعداد ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ آپ کہو کہ سرتاج رضوی لڑکیاں ہیں، بھٹک جاتی ہیں، نہیں پیارے، وجہ یہ ہے کہ پہلے کے دور میں جب فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے تو گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، سلام پڑھنے کی آواز آتی تھی، نعت مصطفیٰ پڑھنے کی آواز آتی تھی، بیٹیاں گھروں کے اندر دین سیکھتی تھی اور قرآن بھی پڑھتی تھی، سلام بھی پڑھتی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلیٰ حضرت معاشرہ۔ اور آج فجر کی نماز چھوڑیے، چاہے جو نماز پڑھ کے نکل جائیں، گھروں سے اذان کیے، گھروں سے
कुरान की तलावत की आवाज नहीं, नाते मुस्तफा की आवाज नहीं, किसी भी वक्त निकल जाइए सीरियल की आवाज आ रही। अगर आवाज आ रही है तो कार्टून चलाने की आवाज आ रही है, अगर आवाज आ रही है तो गाने चलाने की आवाज आ रही है। 4-4 साल के 3-3 साल के छोटे छोटे बच्चे फॉर्स रील्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक की बेहुदा रील्स चला रहे हैं। मुझे बताइए, इन छोटे छोटे बच्चे को आज आप मोबाइल चला के देते हो, ये रील्स देखते हैं, तो ये बड़े होकर के ये गुलामे मुस्तफा बनेंगे, ये तुम्हारी इज्जत करेंगे, ये तुम्हें जन्नत दिलाएंगे? नहीं प्यारे, ये तुम्हें दुनिया में भी रुसवा करेंगे और आखिरत में भी तुम्हें रुसवा करेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि अगर घर में कुरान की तिलावत होती हो, माँ अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा गौसे आजम जिलानी बने। माँ अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा साबिर कलियरी पैदा होता है। माँ अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा होता है। आज भी अगर माएँ चाहें, आज भी अगर खवातीन चाहें तो बेटियां भी सही रास्ते पर आ सकती हैं, बेटे भी नमाजी बन सकते हैं, शौहर भी नमाजी बन सकते हैं। पहले की औरतें कहती थी, ये मेरी माँ बहनें बैठी हैं इधर, नाराज ना हो, आपको टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। आपका बहुत अहम रोल है, आपका बहुत अहम किरदार है। अगर औरतें चाहें तो हर घर के अंदर बदलाव आ सकता है, इनकलाब आ सकता है, चेंजेस आ सकते हैं। होता क्या था, पहले की खवातीन होती थी, पहले की औरतें होती थी जो सुबह ही अपने शौहर को कहती थी, खबरदार मेरे घर में 1 रुपया भी हराम का कमा कर मत लाना, हम 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा लेंगे, लेकिन 1 लुकमा भी अपने बच्चों को हराम का नहीं खिलाएंगे। और आजकल की औरतें, शौहर गया काम करने और ये पूरा दिन मोहल्ले में घूमती रही, कौन सी पड़ोसन क्या लेकर आई, इसके घर गई उसके घर गई, देखती रही। जैसे ही शाम को शौहर आया, जैसे ही घर में दाखिल हुआ, बस इसने रोना शुरू कर दिया और ड्रामा शुरू कर दिया कि तुम्हारे घर में जब से आई मेरी किस्मत फूट गई, मेरी तो किस्मत ही खराब है। बोला कि हुआ क्या? बोले तुम तो कुछ कराते ही नहीं, शॉपिंग कराते ही नहीं, फला पड़ोसन का शौहर उसको 20,000 की शॉपिंग करा के लाया। तो ये जो शौहर होता है, जब इसका दिमाग खराब होता है, सुबह को निकलता है, फिर ये हिसाब नहीं लगाता कि हराम है कि हलाल, ये सोचता है बस पैसा आ जाए, चाहे जैसा हो, कम से कम घर में जाकर उसके तानों से तो बच जाऊंगा। अल्लाह अकबर। पहले खवातीन होती थी जो कहती थी, हम 1 लुकमा भी हराम का नहीं खाएंगे, हम 1 लुकमा भी हराम का नहीं खाएंगे। और ये औरतें अगर चाहे, वो लोग जो सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हैं, वो लोग जो साल भर में सिर्फ ईद की नमाज पढ़ते हैं, ये औरतें अगर चाहे तो 5 वक्त की नमाजी बन जाए। मुझे बताइए, वो औरत जो बचपन से लेकर जवानी तक पालने वाले माँ बाप से अलग कर दे, वो चाहे तो नमाज नहीं बना सकती? बिल्कुल बना सकती है, लेकिन नाराज किस बात पर होती है? शॉपिंग नहीं कराई। नाराज किस बात पर होती है हजरत? गोश्त नहीं आया। नाराज इसलिए इस बात पर होती है कि फला काम नहीं हुआ, इसलिए नाराज भी तो हुआ करो कि आज नाश्ता नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तुमने फजर की नमाज नहीं पढ़ी है। आज दोपहर में खाना नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा कि तुमने जोहर की नमाज नहीं पढ़ी है। मुझे ईमानदारी के साथ बताओ, अपने सीने पर हाथ रखो, तुम्हारा लड़का अगर एक दिन कोचिंग ना जाए, अगर एक दिन स्कूल या कॉलेज ना जाए, तो तुम उससे नाराज हो जाते हो, उस पर डंडा उठा लेते हो। लेकिन वो कौन सा दिन आएगा जिस दिन तुम अपने बेटे से इसलिए नाराज होना शुरू करोगे कि तुम मस्जिद नहीं गया था, तूने नमाज नहीं पढ़ी है? वो कौन सा दिन होगा जिस दिन तुम अपनी बेटियों से, अपने बेटों से इसलिए नाराज हुआ करोगे कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी? लेकिन नाराज होते, स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, बस इसलिए नाराज होते। मैं ये नहीं कहता कि आप स्कूल कॉलेज ना जाने पर नाराज ना हो, लेकिन कम से कम उन्हें इतना तो सिखा दो, इतना तो दीन सिखा दो कि बड़े हो के वो दुनिया की ना सही तुम्हारी तो इज्जत करे। जब सारी दुनिया तुम्हें छोड़कर आ जाए कब्रिस्तान में, तो कम से कम चंद आयतें तुम्हारी कब्र पे जाके कुरान की पढ़ते, इतना तो दीन सिखा दो उनको। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हजारों की तादाद में मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। और एक बात और बता दूं, ये प्रोपेगेंडे का दौर है, ये प्लानिंग का दौर है। यहाँ होता कुछ है, दिखाया कुछ जाता है। ये रील का दौर है, रियलिटी का दौर नहीं है। ये रील का दौर है, रील का। जो पर्दे पे दिखाया जाता है, लोग उस पर आंसू बहाते हैं। जो पर्दे पर दिखाया जाता है, लोग उस पर आंसू बहाते हैं, नफरतें फैलाई जाती हैं। आजकल एक स्टोरी चल रही है कि नहीं, कि इसमें ऐसा हुआ वैसा हुआ, उस पर दूसरे लोग आंसू बहा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जाकर अपनी बहनों के लिए आंसू नहीं बहा रहे,
अपनी बेटियों के बारे में नहीं बोल रहे, ऐसा है कि नहीं? तो जो हकीकत होती है उस पर तवज्जो नहीं करते हैं लोग, बल्कि रील पर ध्यान देते हैं, रियलिटी पर नहीं। इसलिए मजहब इस्लाम को टारगेट करते हैं। अगर बात रियलिटी की करने लगे, अगर बात हकीकत की करने लगे, तो तुम्हारी बेटियां हो या हमारी बेटियां हो, बेटियां बेटियां होती हैं, बेटियां रेस्पेक्ट की हकदार है, बेटियां इज्जत की हकदार है। और अगर बात हकीकत की करने लगे, तुम स्टोरियां दिखा रहे हो, अरे तुम्हारी वीडियोस मौजूद हैं, तुम कह रहे हो कि ऐसा काम करो 5 लाख मिलेंगे, ऐसा काम कर लो, फलाना मुस्लिम लड़की को फंसा लो 3 लाख मिलेंगे। लेकिन दुनिया हकीकत नहीं देखती, दुनिया प्रोपेगेंडे पे चलती है, दुनिया रील पर चलती है, रियलिटी पर नहीं। मैं पूछता हूं फिर कब आंखें खोलो, तुम कब जागोगे? आज मुस्लिम पेट के हजारों की तादाद में, आप रेस्टोरेंट चले जाइए, किसी होटल चले जाइए, वहां पे सैकड़ों मुस्लिम लड़कियां आपको मिल जाएंगी। हैरत होती है, आज तो बुर्के में भी, हिजाब में भी लड़कियां गैरों के साथ में घूमती हुई नजर आ रही हैं। आप कहोगे भटक गई होगी, नहीं प्यारे, उसको भटकाने वाला तू था, उसको जीन्स लाकर पहनाने वाला तू था, दिन भर फौज फिल्में और सीरियल चलने पर खामोश रहने वाला तू था, स्कूल और कॉलेजेस के नाम पर आजादी देने वाला तू था, अल्लाह अकबर, नंगे सर बाजार में घूमने पर खामोश रहने वाला तू था। मुझे बताओ जरा, आज बेटियां क्यों इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं? पहले बेटियां इस्लाम क्यों नहीं छोड़ती थी, आज क्यों छोड़ रही हैं? पहले क्या था, उन्होंने इस्लाम को सीखा था, वो इस्लाम को जानती थी, सैयदा फातिमा के किरदार को पढ़ा हुआ था या सुना हुआ था, सैयदा ज़ैनब के किरदार को जानती थी। आज की बेटियां नहीं जानती, जानेंगी कैसे? होता क्या है, हमारे चौराहों को देख लो, हमारी बैठकों को देख लो, हमारे घरों को देख लो, होता क्या है? दिन रात हम क्या करते हैं अपनी बैठकों पे, अपने घरों में क्या करते हैं? नेताओं की बात, क्रिकेटर्स की बात, दुनियादार लोगों की बात, फला क्रिकेटर्स ने इतने रन मार दिए, फला हीरोइन की ये फिल्म आ गई, फला एक्टर ने ये फिल्म रिलीज कर दी। बच्चियों के सामने, बच्चों के सामने रात दिन हम यही बातें करते हैं, तो जैसा वो सुनते हैं, जैसा वो देखते हैं, वैसे ही वो बन जाते हैं। याद रहे मुसलमानों, अगर चाहते हो कि मुसलमान बेटियां अपने ईमान का सौदा ना करें, तुम्हें दुनिया में रुस्वा ना करें और आखिरत में भी रुस्वा ना करें, तो सुनो, जो वक्त तुम चौराहों पर बर्बाद करते हो, जो वक्त तुम बैठकों पर बर्बाद करते हो, नेताओं की बात करने में, क्रिकेटर्स की बात करने में, हीरो हीरोइन की बात करने में, सुनो, 1 घंटा या आधा घंटा जो घर में पड़े हैं उनकी जिम्मेदारी है, भाई है तो उसकी जिम्मेदारी है, बाप है तो उसकी जिम्मेदारी है। जो वक्त तुम चौराहों पर बर्बाद करते हो, जो वक्त बैठकों पर बर्बाद करते हो, रोजाना अपनी बेटियों के साथ, अपने बेटों के साथ 1 घंटा बैठ जाओ। अगर तुम उर्दू नहीं पढ़ सकते तो इंग्लिश में आपको सीरत मुस्तफा की किताबें मिल जाएंगी, अगर इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में मिल जाएंगी। रोजाना वो वक्त जो आप बर्बाद करते हो, उस वक्त को अपनी बेटियों के साथ में, अपने बेटों के साथ में बैठ जाओ, और बैठने के बाद में उस 1 घंटे में किसी नेता की बात नहीं होगी, उस 1 घंटे में किसी क्रिकेटर की बात नहीं होगी, बेटियों के सामने अगर बात होगी तो किरदार मुस्तफा की बात होगी, बेटियों के सामने अगर बात होगी तो सैयदा फातिमा के पर्दे की बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिल इसाले सलाम, शेख सरताज रिजवी साहब क़िबला, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत फैज़ान गरीब नवाज, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान सादिर पाक। जरा तज़किरा करो अपनी बेटियों के सामने सैयदा ज़ैनब का, जरा तज़किरा करो सैयदा फातिमा के पर्दे का। और बेटियों, कान खोल कर सुनो, जो इज्जत तुम्हें इस्लाम ने दी वो कोई रिलीजन नहीं दे सकता। अगर तुम्हें चकाचौंध है, तुम भूल चुकी हो तो याद दिला दूं। अरे तुम्हें नहुसत समझा जाता था, तुम्हें जिंदा दफन किया जाता था, तुम्हें तुम्हारा गला दबा दिया जाता था, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं थी, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी, तुम्हें कोई पालता नहीं था, तुम्हारे पेशानी पर कोई पोसा नहीं देता था, तुम्हें कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखता था। मेरे तुम्हारे नबी आए, मेरे नबी ने आकर के दुनिया में ऐलान किया, दुनिया वालों सुनो, पैगंबर इस्लाम आ गया है। अब बेटियों को नहुसत नहीं समझोगे, बल्कि मैं तुम्हें, तुम्हारे लिए इन बेटियों को रहमत का जरिया बनाऊंगा। नबी फरमाते हैं, बेटी अगर घर में पैदा हो तो माँ बाप के लिए रहमत का जरिया है। यही बेटी बड़ी हो जाए, इसकी शादी हो जाए, अगर खुश होकर मियाँ बीवी मुलाकात कर ले तो आका करीम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत कर देता है। यही बेटी और बड़ी हो जाए,
माँ बन जाए तो मेरे नबी फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मुझे बताओ बेटियों, कि तुम्हें इस्लाम से ज्यादा किसी ने इज्जत दी? क्या इस्लाम से ज्यादा कोई तुम्हें रेस्पेक्ट दे सकता है? मेरी बहनों, कान खोल कर सुनो, इस 4 दिन की जिंदगी के लिए अपने ईमान का सौदा मत करो, अपने ईमान का सौदा मत करो। याद करो उस दिन को, हम भी होंगे, आप भी होंगे, तमाम अहले महशर होंगे, महशर का मैदान होगा। बेटियां कान खोल कर सुने, उस दिन ऐलान होगा, महशर वालों अपनी गर्दनें झुका लो, अपनी नजरें नीची कर लो, मुस्तफा की बेटी फातिमा आ रही है। उसके बावजूद सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा को 70,000 हूरों के झुरमुट में जन्नत ले जाया जाएगा। बेटियां अगर चाहती हैं, बहनें अगर चाहती हैं कि उनको जन्नत में सैयदा फातिमा का पड़ोस नसीब हो, तो सुनो, आज किसी हीरोइन के चक्कर में ना पड़ो, बल्कि कनीज़े फातिमा बन जाओ। मेरा ईमान कहता है कि सैयदा फातिमा तुम अपने हाथ से पकड़ के जन्नत में दाखिल करती रहो। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब भी अगर हमने अपनी आंखें नहीं खोली तो कब खोलेंगे जी? अब भी अगर हम खुद नहीं जागे तो कब जागेंगे? मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जागो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जागो, अपनी आंखें खोलो। याद रहे, आज हमरा समझते हैं कि दुनिया ही सब कुछ है, ये दुनिया ही सब कुछ है। हमने समझ लिया कि कामयाबी ये है कि हमने मकान बना लिए, कारें खरीद ली, बिल्डिंगें बना ली, ये वो कामयाबी है जिससे आप अपनी जिंदगी अच्छी बना सकते हो। लेकिन आने वाली नस्लों को कुछ नहीं दे सकते, न्यू जनरेशन को कुछ नहीं दे सकते। अगर आने वाली नस्लों को कुछ देना है तो उनके हाथों में कलम दो, अपने बच्चों को तालीम दिलाओ, बच्चों को पढ़ाओ और बेटियों को मदरसे में पढ़ाओ। क्योंकि ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जो हजारों बेटियां जिन्होंने अपने ईमान का सौदा किया है, मैं ये बात यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सारी दुनिया में अगर ढूंढोगे तो एक भी बेटी मदरसे से पढ़ी हुई नहीं निकलेगी, जिन्होंने ईमान का सौदा किया। यही बात है, चूंकि मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची समझ लेती है कि ईमान किसको कहते हैं, ईमान की हैसियत क्या है, ईमान की अहमियत क्या है। इसलिए ईमान वाले सब कुछ दे सकते हैं लेकिन अपना ईमान नहीं दे सकते। और सुनो मुसलमानों, हम समझते हैं कि दुनिया ही सब कुछ है। नहीं प्यारे, मेरे नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की मुत्तफक अलैह हदीस, मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से की, और जब से दुनिया बनी है तब से लेकर क़यामत तक रहमत का सिर्फ एक हिस्सा तकसीम हुआ। इतना ऊंचा बोलो, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, बस 2-4 मिनट में खत्म कर रहा हूं, मुझे जाना है। जरा ऊंचा बोलो, रहमत का सिर्फ एक हिस्सा तकसीम हुआ, बाकी कितने हैं? 99 हिस्से। अच्छा, इस एक रहमत के हिस्से में अल्लाह की अता करता ग़िज़ाएं देखो, अल्लाह की अता करता नेमतें देखो। अल्लाह ने आंखें दी हैं, इसको देखो, कान दिए हैं, इसको देखो। इंसान अपने आप में एक अजूबा है, इसको देखो। कितनी नेमतें हैं, कितनी रहमतें हैं, लेकिन सिर्फ एक हिस्सा है। अल्लाह अकबर, दुनिया की सारी खूबसूरती, दुनिया की सारी नेमतें, लेकिन सिर्फ एक हिस्सा है। परवरदिगार ने 99 रहमत के हिस्से मैदान महशर के लिए महफूज करके रखे। मेरे नबी फरमाते हैं कि 99 रहमत के हिस्से परवरदिगार ने महशर के लिए महफूज करके रखे हैं। सहाबा किराम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो 99 रहमत के हिस्से कैसे तकसीम किए जाएंगे? तो मेरे तुम्हारे नबी फरमाते हैं, सुनो, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा अपने अंबिया से, औलिया से और सालिहीन से, हे मेरे बंदो, तुमने मेरी खातिर दुनिया को तर्क किया था, लो आज मैं तुम्हें रहमत के 99 हिस्से अता कर रहा हूँ। सुनो, तुम जिसको चाहो जन्नत दे दो और जिसको चाहो दोज़ख से निकाल के जन्नत में डालो। वो जो एतराज करते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और पावर पर, या औलिया कामिलीन की अजमत पर, उनसे कहो जरा इस हदीस को पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला अंबिया, औलिया और सालिहीन को रहमत के 99 हिस्से अता करेगा।
اللہ اکبر. وہ جس کو چاہیں گے جنت کا پروانہ دے دیں گے, وہ جس کو چاہیں گے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیں گے. تو مسلمانوں یاد رہے, ہم اور آپ اگر کوشش کریں, ہم اور اگر آپ اپنے شب و روز کو بہتر بنانے کی کوشش کریں, اپنی راتوں کو سجدوں سے سجانے لگیں, تو کم سے کم کچھ نہ کر سکے تو اتنا تو کر لو کہ صالحین میں بھی اگر شمار نہ ہو سکے تو صالحین سے محبت کرنے والوں میں شمار. بس میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. اگر اس آیت پہ گفتگو شروع ہو گئی تو 1 گھنٹہ چاہیے, لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. علامہ صاحب کی تقریر سنیے, بہت لوگ ہیں, سن لیجئے, اس کا مفہوم سمجھ لیجئے. مسلمانوں یاد کرو اس دن کو, وہ جو دن ہوگا نا, محشر کا جو دن ہوگا, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اس دن مجرموں کو, گناہگاروں کو, پرہیزگاروں سے الگ کر دیا جائے گا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, پرہیزگاروں کو, نیکوں کو, متقیوں کو دولہا بنا کر رحمان کی طرف, جنت کی طرف دولہا بنا کر لے جایا جائے گا. لیکن گناہگاروں کو, خطا کاروں کو, سیاہ کاروں کو, بھوکا اور پیاسا مجرموں کو ہانک کر لے جایا جائے گا, جس طرح سے آج جانوروں کو لٹ کے سہارے ہانک کر لے جایا جائے گا. اپنے رب کے خوف کو دل میں بساؤ, اور سب سے پہلے کوشش یہ کرو کہ اپنے گھر میں سدھار پیدا ہو. ہم اگر اپنے گھروں سے سدھار لانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری بیٹیاں بھی محفوظ رہیں گے, ہمارے بیٹے بھی محفوظ رہیں گے, ان کا ایمان بھی محفوظ رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس مرحوم کے اصال ثواب کی غرض سے اس محفل کو سجایا گیا, پروردگار اس کی مغفرت فرمائے, اس کے درجات کو بلند فرمائے. مولانا وسیم رضا صاحب قبلہ, معافی چاہتا ہوں, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول.